Good morning, everyone. In the previous session, we have done problems on dependent, independent events and conditional probability. We will continue the same, and this will be your very first question for the day. क्या दिया गया है इस सवाल में? A problem in mathematics. A problem in mathematics is given to three students A, B, and C. Their chances of solving the problem are 1 by 3, 1 by 4 and 1 by 5 independently. और दिया भी है आपको, if all of them try independently, then what is the probability that the problem is solved? Very first bit. Again, this is going to be very simple. हमें तीनों बच्चे सॉल्व करेंगे सवाल, उसकी प्रोबेबिलिटी दी गई है. तो P of A is equal to 1 by 3. P of B is equal to 1 by 4. P of C is equal to 1 by 5. ठीक है, हमें पता है प्रोबेबिलिटी अगर मुझे सॉल्व का निकालना है तो मैं क्या करूंगा, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी द प्रॉब्लम इज नॉट सॉल्व. यस, डू यू ऑल एग्री विद दिस बेटा? करेक्ट. हाउ वी फाइंड प्रोबेबिलिटी दैट द प्रॉब्लम इज सॉल्व्ड? Correct. Probability that the problem is solved is nothing but 1 minus probability that the problem is not solved. Okay. Now this is going to be 1 minus problem is not solved. Not solved और तीनों के तीनों बच्चे इंडिपेंडेंटली ट्राई करेंगे, राइट? इसका मतलब ए भी सॉल्व नहीं कर पाया, बी भी सॉल्व नहीं कर पाया और सी भी सॉल्व नहीं कर पाया. Now since the events are independent, so we know it is going to be 1 minus P of A complement into P of B complement into P of C complement. ठीक है, अभी हमारे पास P of A, P of B और P of C है. मैं यहाँ से आसानी से P of A complement, B complement और C complement निकाल सकता हूँ. Correct. So this will be what? P of A complement is nothing but 1 minus P of A, 1 minus 1 by 3, so it will be 2 by 3. P of B complement is equal to 1 minus P of B is 1 minus 1 by 4, that is going to be what? 3 by 4. P of C complement is equal to 1 minus P of C. This will be 1 minus 1 by 5. It will be how much? 4 by 5. तो हमारे पास तीनों ही चीजें अवेलेबल हैं, राइट? दिस विल बी 1 माइनस P ऑफ A कॉम्प्लीमेंट. A कॉम्प्लीमेंट विल बी 2 by 3. B कॉम्प्लीमेंट will be 3 by 4 and C complement is 4 by 5. Correct. So what is going to be the answer? Correct. If you observe, so 3 3 gets cancelled, 4 4 gets cancelled. 1 minus 2 by 5. What will be 1 minus 2 by 5? Yes. Can I say the answer is going to be 3 by 5? Everyone. 1 minus 2 by 5 क्या आएगा बेटा? 3 by 5 आएगा ना? So that becomes the very first question. That becomes the very first question. Okay. चलिए आगे बढ़ते हैं. ठीक है, लेट अस गो इट फॉर द नेक्स्ट वन. फर्स्ट बिट हो गया है. क्या मैं कह सकता हूँ फर्स्ट बिट के अंदर ही सेकेंड बिट भी हो गया? यस और नो डियर? कहना है से फर्स्ट बिट में ही सेकेंड बिट कवर हो चुका है. ठीक है, कैसे? देखिए पार्ट बी हमें बोला गया है प्रॉब्लम इज नॉट सॉल्व. प्रॉब्लम इज नॉट सॉल्व, इट मीन्स
probability of A complement, probability of B complement, probability of C complement. So this will be P of A complement into P of B complement into P of C complement. This is going to be A complement. A complement means it is 2 by 3 into 3 by 4 into 4 by 5. Correct. So the answer for this will be nothing but what? 2 by 5. Correct. So this is going to be the answer for B. This is going to be the answer for the B bit. Okay, C bit देखिए क्या बोला है. Problem is solved exactly by two students. Yes or no? Exactly two students solve the problem. Exactly two students solve the problem. Now carefully. दो बच्चे सॉल्व करेंगे मतलब अगर ए और बी ने प्रॉब्लम सॉल्व किया है तो सी ने प्रॉब्लम सॉल्व नहीं किया है. अगर ए और सी ने प्रॉब्लम सॉल्व किया है तो बी ने नहीं किया है. और अगर बी और सी ने प्रॉब्लम सॉल्व किया है तो फिर ए ने प्रॉब्लम सॉल्व नहीं किया है. ठीक है. तो कितने केसेस बनेंगे यहाँ पर? तीन. ठीक है. प्रोबेबिलिटी दैट एग्जैक्टली two students solve the problem. Exactly two students solve the problem. Exactly two students solve the problem. Correct. Very good. So this is going to be probability of A and B solved the problem but C did not solve the problem, or A and C solved the problem but B was unable to solve the problem. Probability of A, now A has not solved the problem but B and C have solved the problem. Now all the three events are independent events. So first bit it will be P of A into P of B into P of C complement plus P of A, very good Roma beta, P of B complement and P of C plus P of A complement into P of B into P of C. Correct. So this is going to be what? P of A क्या है? Yes. मुझे जरा values बता दीजिए. P of A is 1 by 3, right? This will be 1 by 3 into 1 by 4 into 4 by 5. This will be the first bit. ठीक है. Plus P of A again. This is 1 by 3. This will be 3 by 4 into P of C, that is 1 by 5, plus A complement, it is 2 by 3 into 1 by 4 into 1 by 5. ठीक है. आप बहुत ही इजी से इसे फाइंड कर सकते हैं तीनों का. अगर डिनोमिनेटर देखेंगे तो क्या मैं कह सकता हूँ? इट इज गोइंग टू बी 60. सो दिस विल बी 4 by 60 प्लस 3 by 60 प्लस 2 by 60. करेक्ट. तो ये कितना आ जाएगा बेटा? 4 plus 3 plus 2. This is going to be 9 by 60. Now if you want you can reduce it. You can apply the table of 3. It will be how much? 3 by 20. Correct. Anybody having any doubts in this question? Yes. Any doubts to anyone? Non-max students, any doubts? Non-max students, any doubts beta? Non-max students, anybody having any doubts? Okay. Max students, any doubts? Shrutika, Bisakha, Sakshi, एकता. एकता आजकल आपके आंसर्स नहीं आते हैं. यस एकता समझ रहा है बेटा? ओके वेरी गुड बेटा.
एकता, यू अंडरस्टैंडिंग द कॉन्सेप्ट्स? ओके, नहीं आपके आंसर्स नहीं आते इसलिए पूछा, ठीक है, चलिए कोई बात नहीं। लेट अस गो एट फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या दिया गया है। यस, आर यू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट्स? पक्का एकता? आपसे सवाल पूछूंगा मैं अभी। पूछूं बेटा सवाल? नहीं नहीं पूछते, नहीं पूछते भाई, नहीं पूछते बस। Okay, let us try to solve this question now. The probability that a 50-year-old man will be alive till age of 60 is 0.83. ठीक है, 50-year-old man है, he will be alive till the age of 60, मतलब 50 से 60 वो पहुंचेंगे, उसकी प्रोबेबिलिटी है 0.83। और दिया गया है 45-year-old वुमेन है, she will be alive till the age of 55 is 0.97। क्या बात है, वुमेन की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है। करेक्ट, क्यों? क्योंकि उनकी एज कम है, सिंपल। पूछा गया है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द मैन हुज एज इज 50 एंड हिज वाइफ एज इज 45 विल बोथ बी अलाइव फॉर द नेक्स्ट 10 ईयर्स। करेक्ट, दोनों के दोनों इस दुनिया में रहेंगे, करेक्ट, सुखी रहेंगे, भगवान करे उन्हें शांति भी रहे, बहुत पैसा भी हो, करेक्ट, बट दे विल लिव फॉर द नेक्स्ट 10 ईयर्स इन दिस वर्ल्ड। करेक्ट, अब मुझे बताइए, करेक्ट, ये इवेंट्स कैसे रहेंगे? सी, ऐसे क्वेश्चन में ना ये समझना कि इट इज विच टाइप ऑफ इवेंट दैट मैटर्स। इन्होंने ऐसा तो नहीं दिया है कि अगर वाइफ जिएगी तो ही हस्बैंड जिएगा, ठीक है, उन्होंने कोई भी कंडीशन नहीं दी है, ठीक है, मतलब ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी यानी कि डिपेंडेंट इवेंट तो नहीं है, फॉर श्योर डिपेंडेंट नहीं है। अभी किसी का इस दुनिया में रहना और किसी का इस दुनिया से जाना, ठीक है, क्या एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट होता है कभी? इज इट नेसेसरी कि हमेशा जिसकी एज बड़ी हो वो पहले जाएगा, जिसकी एज छोटी हो वो बाद में जाएगा? नहीं, राइट, बोथ आर टू, सॉरी बोथ में बोल रहा हूँ, दीज आर टू इंडिविजुअल्स। नाउ it can vary, right? It is not necessary that the first one will go or the second one will go। कितना जीने वाले हैं वो इंडिपेंडेंट है, हाँ, बट एक मैं जरूर कह सकता हूँ कि इस दुनिया से जाएंगे जरूर, ठीक है। वो का ये मैंने भी सुना है, मैं लाइक इन some one of the spiritual person told that you cannot deny the fact that you will go one day। करेक्ट, मैंने कहीं तो सुना भी है और देखा भी है टीवी पे कि आप इस फैक्ट को जुटला नहीं सकते कि आप जाएंगे जरूर एक दिन, बट अगेन कौन कभी जाएगा दैट इज एन इंडिपेंडेंट इवेंट, राइट? Do you all agree with this? It is not necessary that for a certain age group will go first, जैसे like like only the people above 80 will go first, not necessary, correct? It can vary from person to person। Yes, okay, so now let me come to the conclusion that the probabilities of these two are independent, correct? Now who will live for the next 10 years, उसकी probability निकालनी है, तो मैं क्या कहूँगा, let A be the probability of an old man who is of 50 years, correct, whose age is 60। A will be the probability of an old man, ठीक है, and B be the probability of an old woman, old woman। हमें बोला गया है कि अगले 10 साल तक ये दोनों ही जिएंगे। नाउ बोथ आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स, these both will live for the next 10 years, so that will be the probability of A into probability of B। और उन्होंने हमें दिया है, राइट, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यानी कि ओल्ड मैन जिएंगे अगले 10 साल तक इज 0.83, और वुमेन जिएंगी अगले
10 साल तक उसका प्रोबेबिलिटी 0.97, so this will be 0.83 into 0.97, correct? So probability that both will be alive for the next 10 years will be nothing but 0.83 into 0.97, and that is 0.8051. So approximately I can say there are 80% chances that both will be alive for the next 10 years. Like if I talk about in percentage, correct, I can say that 80% are the chances that both will be alive. Okay, now next beta, next question. Again, first you all read it once, correct, give it a try, and then I will solve it for you. Okay, read it once. लेट अस कंटिन्यू। देखिए हमें क्या दिया गया है, टू कार्ड्स। अच्छा इधर कार्स लिख रहा है आपको, बट आई थिंक वो मैनेजेबल है, करेक्ट, ऐसे नहीं कि आप नहीं समझे होंगे। ठीक है, टू कार्ड्स आर ड्रॉन फ्रॉम ए पैक ऑफ 52 कार्ड्स विथ रिप्लेसमेंट। बेटा विथ रिप्लेसमेंट मतलब आप समझ गए होंगे कि सैंपल स्पेस तो चेंज नहीं होना वाला। यस, डू यू ऑल एग्री विद दिस? यस और नो डियर? यस एवरीबॉडी? ओके, अभी दो कार्ड निकाल रहे हैं हम लोग, एक के बाद एक। बोला है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ द कार्ड्स ड्रॉन आर द फेस कार्ड्स। अभी एक लाइन में कितने फेस कार्ड्स होते हैं? एक लाइन में कितने फेस कार्ड्स होते हैं? 3। तो 4 लाइन में कितने फेस कार्ड्स होंगे? 4 लाइन में कितने फेस कार्ड्स होंगे? 12। ठीक है, तो अभी आप दो कार्ड निकालने वाले हैं। जब आप पहला कार्ड निकालेंगे तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी बेटा? 12/52। करेक्ट, दिस विल बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग फर्स्ट कार्ड टू बी अ फेस कार्ड। अभी विथ रिप्लेसमेंट बोला है, करेक्ट, तो सेकेंड कार्ड निकालने से पहले मैं ये पहला वाला कार्ड जो है वो वापस अंदर डाल दूंगा। यस और नो एवरीबॉडी? विथ रिप्लेसमेंट बोला है ना, तो सेकेंड कार्ड ड्रॉ करने से पहले मैं ये वाला कार्ड जो है वो वापस अंदर डाल दूंगा। लेकिन ये देखो क्या बोल रहा है, बोल रहा है प्रोबेबिलिटी दैट बोथ द कार्ड्स आर फेस कार्ड। तो अगर पहला कार्ड फेस कार्ड निकला है वो भी अंदर वापस चला जाएगा, तो अगेन मेरा सेकेंड टाइम में फेस कार्ड आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 12/52। यस, डू यू ऑल एग्री विद दिस एवरीबॉडी? एनी डाउट्स टू एनीवन? लेकिन ये बेटा सैंपल स्पेस सेम क्यों है? क्योंकि विथ रिप्लेसमेंट है। ठीक है, मैं आपको एक और सवाल पूछूंगा, सेम क्वेश्चन अगर मैं आपको कह दूं विदाउट रिप्लेसमेंट। सेम क्वेश्चन इफ आई टेल यू विदाउट रिप्लेसमेंट। सेम क्वेश्चन इफ आई टेल यू विदाउट रिप्लेसमेंट। विदाउट रिप्लेसमेंट, तो पहला कार्ड निकालेंगे और वो फेस कार्ड आएगा, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? फर्स्ट कार्ड, पहले फर्स्ट कार्ड के बारे में बात करेंगे बेटा। वेरी गुड, यू ऑल आर करेक्ट, दैट्स नाइस, वेरी गुड, वेरी गुड डियर, वेरी गुड, प्राउड ऑफ यू बेटा, प्राउड ऑफ यू। करेक्ट, मेनी स्टूडेंट्स हैव गिवन द करेक्ट आंसर, दैट्स नाइस। हर्ष, हर्ष, हर्षा, ज्योति, भक्ति, क्या बात है। रिया, बहुत ही अच्छी, मतलब मैं जो पढ़ा रहा हूँ वो समझ रहा है। हाँ, हैप्पी अबाउट इट। यस, मतलब जो पढ़ाई की है वो आप लोगों को समझी है, इसीलिए आंसर सही सही आ रहे हैं। और सबसे अच्छी बात ये, एक भी बच्चे ने गलत आंसर नहीं दिया, दैट्स रियली नाइस। ठीक है, अभी आप लोगों ने आंसर तो सही दे दिया, एक बार फिर भी मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। ठीक है, अभी हम लोग जब पहला कार्ड निकालेंगे और वो फेस कार्ड आना चाहिए, तो एक लाइन में 3 फेस कार्ड होते हैं, तो 4 लाइन में होंगे 12। ठीक है, तो पहला कार्ड फेस कार्ड निकलेगा, उसकी प्रोबेबिलिटी 12/52। अब यहां पर बोला गया है विदाउट रिप्लेसमेंट, तो विदाउट रिप्लेसमेंट का मतलब क्या हुआ कि जो कार्ड अब मैंने निकाल दिया उसे मैं बाहर ही रख दूंगा। ठीक है, मैं वापस से अंदर उसे नहीं डालने वाला पैक में।
अब ये कार्ड बाहर ही है, ठीक है, तो सैंपल स्पेस जो कि मेरा 52 है वो अब क्या हो जाएगा 51, ठीक है, सैंपल स्पेस क्या हो जाएगा 51। अब बेटा जो कार्ड आपने एक निकाल के बाहर रखा है वो भी फेस कार्ड है, यस, जो बेटा कार्ड आपने एक बाहर निकाल के रखा है वो भी तो फेस कार्ड है ना, करेक्ट। तो पहले 12 थे, एक बाहर पड़ा है, फिर से रिपीट करता हूँ, पहले कितने थे 12 कार्ड्स, एक हमारा बाहर पड़ा है फेस कार्ड, तो अब कितने बचे हमारे पास 11, so it is going to be 11 by 51। yes, everybody applied this same logic in getting the answer, everyone? Okay, that's nice, it's really nice. So let us go ahead for the next question based on the logic. Similar kind of concepts. Now this is an interesting one, correct? Please read the very first question and give it a try. Then I will discuss in a minute's time. Give me an answer with confidence. Yes, that's correct. Nikhil is also correct. Okay, चलिए डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं। बहुत ही अच्छा निखिल, निखिल वेरी गुड बेटा। अब देखिए हमारे पास बैग्स अवेलेबल हैं, ठीक है, बोला है अ बैग कंटेन्स 4 ब्लू एंड 5 ग्रीन बॉल्स। अनदर बैग, another bag very good Archie, another bag contains 3 blue and 7 green balls, ठीक है, बोला गया 1 बॉल इज ड्रॉन फ्रॉम ईच बैग, दोनों बैग में से एक एक बॉल हमने ड्रॉ किया है। बहुत ही अच्छा, बट सुशील ये सिर्फ पहले बैग से निकालना हुआ, करेक्ट, ये पहले बैग से निकालना हुआ। देखो क्या बोला है, 1 बॉल इज ड्रॉन फ्रॉम ईच बैग, ठीक है, what is the probability both the balls are of same color, what is the probability both the balls are of same color। चलो ठीक है, मैं तो पहले बैग्स बना दूं भाई साहब, ठीक है, ये है मेरा पहला बैग, ये है मेरा दूसरा बैग, ठीक है, मेरे पास दो बैग्स हैं, बैग 1 एंड बैग 2। फर्स्ट बैग में इन्होंने बोला है देयर आर 4 ब्लू, 4 ब्लू, एक मिनट ना लक्ष्य था, एंड दीज आर 5 ग्रीन, 4 ब्लू 5 ग्रीन, और इसमें बोला गया है देयर आर 3 ब्लू एंड हाउ मेनी ग्रीन, 7 ग्रीन, 7 आर दी ग्रीन बॉल्स। अभी मुझे क्या बता सकते हैं पहले बैग में टोटल बॉल्स कितने हैं, फर्स्ट बैग में टोटल कितने बॉल्स हैं, फर्स्ट बैग में देयर आर टोटल 9 बॉल्स, सेकेंड बैग में टोटल कितने बॉल्स हैं, सेकेंड बैग में टोटल कितने बॉल्स हैं, 10 बॉल्स हैं। अभी मैं इंडिविजुअली प्रोबेबिलिटी निकाल लेता हूं बेटा, प्रोबेबिलिटी कि पहले बैग में से ब्लू बॉल बाहर आएगा क्या होगी, व्हाट विल बी प्रोबेबिलिटी कि पहले बैग में से ब्लू बॉल बाहर आए, ब्लू बॉल बाहर आए उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, फेवरेबल इवेंट्स आर 4, टोटल नंबर ऑफ इवेंट इज सैंपल स्पेस, प्रोबेबिलिटी की सेकेंड बैग में से ब्लू बॉल बाहर आएगा इट विल बी 3/10। यस, किसी को कोई डाउट ब्लू बॉल की प्रोबेबिलिटी में, यस, एनी डाउट्स टू एनीवन इन फाइंडिंग द ब्लू बॉल प्रोबेबिलिटी, नो राइट। अभी पहले बैग में से ग्रीन बॉल बाहर आएगा, ये क्या होगी प्रोबेबिलिटी 5/9, ठीक है, और यहाँ पर क्या आ गई प्रोबेबिलिटी 7/10, ठीक है, तो मेरे पास हर एक बॉल के आने की प्रोबेबिलिटी जो है वो अवेलेबल है। यहाँ तक किसी को कोई डाउट बेटा, यहाँ तक किसी को कोई डाउट? अब देखिए ना इन्होंने बोला क्या है, प्रोबेबिलिटी दैट टू बॉल्स आर ऑफ सेम कलर, टू बॉल्स आर ऑफ सेम कलर, और बोला क्या है 1 बॉल इज ड्रॉन फ्रॉम ईच बैग। अब बेटा जब ये बोल रहा है बॉल्स आर ऑफ सेम कलर मतलब या तो दोनों ही बॉल्स ब्लू होंगे, यस,
या तो दोनों ही बॉल्स जो हैं वो ब्लू होंगे और दोनों ही बॉल्स क्या होंगे बेटा, ग्रीन होंगे। करेक्ट, आइदर बोथ दी बॉल्स विल बी ब्लू और both the balls will be nothing but green. Yes or no dear? Yes or no? अब अगर दो ब्लू बॉल्स हैं और मैं आपको ये कह रहा हूं कि हर एक बैग में से एक ही बॉल निकालेंगे, एक बैग में से एक ही बॉल निकालेंगे, तो बेटा ब्लू बॉल पहली बैग से निकाला वो क्या होगा 4/9, ब्लू बॉल दूसरी बैग से निकाला, करेक्ट, इट विल बी 3/10। करेक्ट, या तो फिर यानी कि और का मतलब प्लस। करेक्ट, अब अगर आप पहले बैग में से ग्रीन बॉल निकाल रहे हैं तो इट विल बी 5/9 और अगर दूसरी बैग में से निकाल रहे हैं तो 7/10। करेक्ट, सो व्हाट इज गोइंग टू बी द आंसर बेटा, 12 प्लस 35, 12 प्लस 35/90, तो 12 प्लस 35 कितना हो जाएगा 47/90। Anybody having any doubts in this question? Anybody having any doubts in this question? Any doubts to anyone? Okay. Now, please try the next one. Read the question. Correct. Try it for a minute and then I will discuss the answer. What is given to me in this question? One shot is fired from each of the three guns. A, B, C denote the event that the target is hit by the first, second, and the third gun, respectively. Assuming that these three events are independent, correct? Will I find the probability that at least one hit is registered? कम से कम एक जो फायर किया है गन से वो टारगेट को हिट कर रहा है, कम से कम एक। तो हमने पढ़ा है प्रोबेबिलिटी of at least one is equal to what, 1 minus probability of none। उस लॉजिक से अगर मैं बात करूं, हमें बोला गया है कम से कम एक हिट होना चाहिए, एटलीस्ट वन हिट। तो मैं क्या करूंगा, टोटल में से माइनस कर दूंगा कि एक भी टारगेट हिट नहीं हुआ है, नन ऑफ द टारगेट इज हिट, नन ऑफ द टारगेट is hit, none of the target is hit। इसका मतलब क्या होगा, वन माइनस, न टारगेट ए ने हिट किया, ना ही बी ने हिट किया और ना ही सी ने हिट किया। ठीक है, सो और ये दिया है हमें कि इवेंट्स जो हैं वो इंडिपेंडेंट है। करेक्ट, दिस इज गिवन टू मी। करेक्ट, सो दिस विल बी 1 माइनस probability of A complement into probability of B complement into probability of C complement। ओके, नाउ 0.5, 0.5 का क्या हो जाएगा, A complement 0.5, B complement 0.6, अगर B है तो ये कितना हो जाएगा 0.4, C अगर 0.8 है तो ये कितना हो जाएगा 0.2। ठीक है, तो यू आर जस्ट गोइंग टू मल्टीप्लाई दीज थ्री, दिस विल बी 1 minus 0.5 into 0.4 into 0.8। Correct, so the answer is going to be 1 minus how much, it is going to be 0.04, so the answer is nothing but 0.96। yes, anybody having any doubts? सभी लोगों को आंसर 0.96 मिला बेटा, everybody got the answer as 0.96, everyone? Okay, any doubts to any question? हाँ, तो वही तो लिखा है। Any doubts to anyone in this question? Okay. Okay. Okay, so this is the question which you need to try it now. Correct, and get me the answers.
Correct. Quickly try all these questions. You have few minutes for trying all the bits. Then जिसमें आपको doubt होगा मैं सिर्फ वही bit जो है solve करूँगा. Correct. Quick. This is based on your formulas. So the first answer majority of the students have got is 3/20. Yes, सभी लोगों को वही मिला है. Every student has got the answer as 3/20. करेक्ट. और आपने फॉर्मूला जो है जो यूज की होगी वो कौन सी होगी? P of A union B की. Yes, do you all agree with this? Correct. You would have used the formula of P of A union B. Correct. P of A union B is nothing but P of A plus P of B minus P of A intersection B. करेक्ट. ये आपने यूज की होगी फर्स्ट के लिए. चलिए जल्दी से सेकंड बताइए बेटा. सेकंड का आंसर क्या आता है? करेक्ट. पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट. इट इज एज गुड एज डिफरेंस ऑफ द सेट, यानी कि पी ऑफ ए माइनस बी, जिसका मतलब मैंने आपको बताया था ए में से जो कॉमन है वो हम निकाल देंगे. यस. करेक्ट. जल्दी से फाइंड कीजिए. Quickly find it. Okay, that's nice. Now similarly you find the rest and then together give me the answer. You have 2 minutes of time. Quick. Now you solve all the bits and then together we will discuss the answer. The first answer you got is 3/10. Okay, sorry, 3/20, right? Second answer what you all have got is 1/10. Correct. And the answer is correct. 1/10 is the answer and it is correct. Okay, थर्ड के लिए आपने कौन सी फॉर्मूला अप्लाई की होगी? P of A complement intersection B. It means I am talking about difference of a set, that is B minus A, that is P of B minus P of A intersection B. Okay, so what you got the answer for this as 25/100. It means I can say it is nothing but 1/4. Yes or no? It means it is nothing but what? 1/4. थर्ड का आंसर आपको मिला 1/4. ओके, डी का आंसर क्या मिला बेटा? डी के लिए आपको डी मॉर्गन्स लॉ अप्लाई करना पड़ा होगा. यस और नो? ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट. तो डी मॉर्गन्स लॉ के अकॉर्डिंगली मैं क्या कहूंगा? इट इज नथिंग बट ए इंटरसेक्शन बी द होल कॉम्प्लीमेंट. तो मैं क्या कहूंगा? टोटल में से माइनस कर दो. करेक्ट. पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, तो आपको मिल जाएगा पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट. इंटरसेक्शन कितना दिया है उन्होंने हमें? 3/20. 1 माइनस 3/20, इसका आंसर आपको मिलना चाहिए 17/20. यस. 1 माइनस 3/20, इसका आंसर आपको मिला होगा 17/20. करेक्ट. नाउ नेक्स्ट. सो सिमिलरली आपने ई सॉल्व किया होगा. ई का आंसर क्या मिला है आपको? व्हाट इज द आंसर फॉर ई? 1/2 and it is correct again. The answer for E is nothing but 1/2. The answer for E is 1/2. कैसे आया होगा? P of A complement intersection B complement. It is P of A union B complement. That is 1 minus P of A union B. Now A union B हमें दिया गया है half. So 1 minus 1/2, it will be 1/2. Correct.
Any doubts to anyone in this question? Anybody having any doubts in this question? Sure. Abhishek, your camera is on. Abhishek, can you hear me? I think he is not listening. Abhishek, I have requested many a times that see to it that your camera doesn't on if you are not sitting properly, correct, or you are lying on a bed, correct. And this is not the way you should attend the lecture, beta. Correct. I have told this multiple times, but I don't understand why the similar mistakes are being repeated by different students. That's really wrong, believe me. So let us continue with the next question. Okay, one, two, three, 4, 5, 6. Okay. So 11th standard students, it's a request to you that you can now try all the questions of your exercise. Correct. They are at very easy level. I have not discussed all, but I have discussed only the difficult ones. Like majority of the student face problem in the last exercise conditional probability. So maximum questions are been taken from there. बाकी जो इजी इजी हैं जैसे कि सैंपल स्पेस बनाना, जैसे कि आपको पूरी एक एक्सरसाइज सिर्फ सैंपल स्पेस बनाने के ऊपर दी गई है, आप समझ रहे हैं। पहली एक्सरसाइज जो है सिर्फ आपको सैंपल स्पेस बनाना है, दूसरी एक्सरसाइज में सिर्फ आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी है, तीसरी एक्सरसाइज में सिर्फ वो पी ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ बी माइनस पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी वो दिया है, करेक्ट। सो द लेवल ऑफ द सम्स आर वेरी इजी, और अगर आप सारे लेक्चर्स परमुटेशंस कॉम्बिनेशंस के बैठे हैं तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। सो स्टिल इफ एट ऑल यू फेस एनी प्रॉब्लम्स यू कैन अपडेट मी, विल कीप वन डाउट सेशन, ठीक है। सो आदित्य हैज ट्राइड। आदित्य, आर यू फाइंडिंग इट इजी? यस, Aditya has given the try to the sums. Are you finding it easy? You must find it very easy because मतलब सैंपल स्पेस के ऊपर आपको लगता भी नहीं है, मतलब मुझे नहीं लगता कि कभी कोई क्वेश्चन भी पूछेगा, बट पूरा एक्सरसाइज सैंपल स्पेस पे देना सेंस नहीं बनता, बट दे हैव गिवन इट, करेक्ट, बिकॉज दे आर अज्यूमिंग कि आपको पीएनसी अच्छे से आता है, तो द स्टूडेंट्स हु नो permutations and combinations, for them these things will be very easy. Okay, now coming to CA foundation students, yes, everybody, have you tried the first exercise of permutations? CA फाउंडेशन में कितने लोगों ने परमुटेशन की पहली एक्सरसाइज ट्राई की? कि कल हम डिस्कस करने वाले हैं, राइट? सो हेंस आई एम आस्किंग यू। यस, वेरी गुड, बोथ द एक्सरसाइजेस, दैट्स नाइस बेटा, करेक्ट। कितने 23 में से आप लोग एटलीस्ट 12 सम्स खुद से कर पा रहे थे? मैं 50% पकड़ रहा हूँ ना सीधा, आई एम जस्ट डायरेक्टली गोइंग एट फॉर 50%, करेक्ट। Okay, that's nice. Non-max students, 21 correct, 17 correct, 19 sums correct. That's nice. That's, believe me, that's really nice. That's really nice. देखो कुछ क्वेश्चंस में जरूर डाउट आएगा, और वो डाउट आना भी चाहिए क्योंकि कुछ कुछ क्वेश्चंस की लेवल अच्छी है। यस, अदर नॉन मैक्स स्टूडेंट्स, महक श्यामदासानी, करेक्ट, देन भक्ति, निखिल वलेचा, at least you were able to do 10 to 12 sums, yes or no? Yes or no, beta? Okay, that's nice. So soon we are going to discuss. Now, in the evening session, we'll first discuss the paper of linear inequality, and then, if time permits, I may take few more questions on probability, else not. Correct. So you all, like 11th standard students, now it depends on you because your targeted syllabus is completed. Okay, your targeted syllabus is completed, so I'm going to raise the level of probability now, correct. So I will have a talk with sir,
correct? Like, can I allow them or not? Because the sir has certain conditions that that I think few of the students are not liking my particular teaching. So that is where some problems have arrived. Else I would have allowed you for the lectures, but then I have restricted myself to uh, probability till 11th standard. Okay, so 11th standard students, now it will be no, not necessary for you to sit for the lectures. All your concepts are completed. If at all you want, you can sit for the doubt session. If at all you have any, I will keep it for you. Correct. So for evening, it will be only foundation students. Okay, from today evening onwards, only the foundation students will sit. Okay, is it okay with everyone? Yes, everyone, beta. Is it fine? Okay. Okay. CHM college, any updates when they are conducting the examinations? When they are conducting the examinations, any updates? ओके, आपका आप सिर्फ जो एक चैप्टर बचता है दैट इज कमर्शियल मैथमेटिक्स, वो मैंने आपको पहले ही बोला है, वो सबसे बेसिक चैप्टर है. अगर आपको उसमें कुछ डाउट्स आते हैं तो आप प्लीज मुझे बताइएगा. आई विल कम्युनिकेट टू यू इन पर्सनल, सुशील, फॉर श्योर. ओके, सो यू ऑल कैन ट्राई कमर्शियल मैथमेटिक्स. सुशील, आपने ट्राई किया कमर्शियल मैथमेटिक्स? यू फाउंड इट इजी? परसेंटेज निकालना, प्रॉफिट निकालना, लॉस निकालना. यस, फाउंड इट इजी? इट्स वन ऑफ द इजीएस्ट चैप्टर इन द एंटायर मैथमेटिक्स, आई वुड से. और वो ज़्यादा से ज़्यादा आपको सिंपल कंपाउंड इंटरेस्ट तक ही आता है. ठीक है, सो इट्स वेरी इजी. बट इफ एट ऑल you have any doubts, then you can update me for the same. Okay, so we will stop here, beta. Correct, we have conducted 1 hour lecture today evening. Again I am asking only foundation students. Correct, linear inequality is what we will discuss, and then we will continue with the probability at the third level. Okay, फिलहाल नहीं धीरेन, फिलहाल फिलहाल के लिए नहीं धीरेन. एक बार पीएनसी हो जाए, अब ज्यादा टाइम नहीं लगेगा धीरेन बेटा, अब ज्यादा टाइम नहीं लगने वाला. soon your PNC entire module with additional question bank will be discussed, and then we will jump to probability. Correct, so within few days both of the chapters will be completed from module also. Okay Dhiren? Okay, chalo, we will stop here. Correct, see you all in the next lecture. Correct, thank you everyone, have a great day ahead.